इस कंटेंट में हम लोग जर्मनी और इटली इन दोनों का जो यूनिफिकेशन हुआ उसके विषय में पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का एकीकरण। द जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. As you have seen, nationalist feeling were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. This liberal invited to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of the process carried out with the help of the Prussia army and bureaucracy. There was over 7 years three was over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussia victory and completed the process of unification in January 1871. The Prussian King William was proclaimed German Empire in a ceremony held at Versailles. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representative of the army, important Prussia ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussia state power. The new state placed a strong emphasis on
modernizing the currency, banking, and judicial system in Germany. Prussia measures and practices often become a model for the rest of Germany. जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो सबसे प्रमुख हाथ था वह था ऑटो बिस्मार्क। ऑटो बिस्मार्क ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ऑटो बिस्मार्क ही वह व्यक्ति था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। हालांकि प्रसा ने शुरू में जब राष्ट्रवादी लोग, नेशनलिस्ट लोग जो है, लिबरल नेशनलिस्ट, मिडिल क्लास के लोग जर्मन महासंघ बना करके विभिन्न इलाकों को जोड़ने की एक कोशिश की थी, उस समय राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर इसे दबा दिया था। और उस समय प्रसा के बड़े बड़े लैंड ओनर ने भी इनका समर्थन किया था। लेकिन वहीं पर ऑटो बिस्मार्क प्रसा के ही सहयोग से प्रसा की सेना और नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के मदद से मदद ली और 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई, जिसमें प्रसा की जीत हुई। और इस तरह से जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूर्ण हुआ। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण के प्रोसेस में प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बनी। इस तरह से जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटो बिस्मार्क ने ही मेन भूमिका का निर्वाह किया था। 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और प्रसा के काइजर विलियम फर्स्ट को यूनिफिकेंट जर्मनी का एम्पायर घोषित किया गया। यहाँ पर जो है जर्मनी का ये क्षेत्र मैप आपके सामने है
और बुक में भी मैप होगा जिसको आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे। नेक्स्ट है इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. आज का जो इटली है वह इटली 7 स्टेट में उस समय डिवाइड था, ऑफ विच ओनली ऑन सार्डिनिया पिडमेंट was ruled by an Italian princely house जिस पर सार्डिनिया पिडमेंट में इतालवी राजघराने का शासन था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। The center was ruled by the Pope, and the southern region were under the domination of the Bourbon King of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. इसके जिन जिन भागों में इटली डिवाइड था उन पर किन किन लोगों का शासन था। नॉर्थ में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग, नॉर्थ पार्ट जो है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। द मिडिल रीजन पोप का शासन था। साउथ रीजन में स्पेन के बोब्रो वंश के राजाओं के कंट्रोल में था। यहाँ तक कि इतालवी भाषा लैंग्वेज जो थे वो भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक इसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। ड्यूरिंग द 1830 Giuseppe Mazzini had sought to put together a program for a unitary Italian republic. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. कह रहा है कि 1830 के दशक में मेजनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने एम के प्राप्ति के लिए यंग इटली नामक एक सेक्रेट सोसाइटी का बनाया। 1831 से 1848 तक
रिवोल्यूशनरी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुअल सेकंड पर थी। इस क्षेत्र के एम्पायर एरिस्टोक्रेट क्लास की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और पॉलिटिकल डोमिनेशन की संभावनाएं उत्पन्न करता था। प्रमुख मंत्री कैबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने और आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो वह एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस के सार्डिनिया पिडमेंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कैबूर का हाथ है, से सार्डिनिया पिडमेंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। In the eyes of ruling elite of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he had Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray in 1860. They marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. इस तरह से यह इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। इटली के यूनिफिकेशन में मैज़नी, कैबूर और गैरीबाल्डी, इन तीन का प्रमुख योगदान था। 1861 में इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। अगर किसी एक व्यक्ति के योगदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान गैरीबाल्डी का था, क्योंकि
क्योंकि गैरीबाल्डी के ही लीडरशिप में सशस्त्र उसके स्वयंसेवकों ने जो 1859 में ऑस्ट्रियाई फोर्सेस को इटली ने डिफीट दिया, उसमें गैरीबाल्डी के जो सशस्त्र स्वयंसेवक थे उन्होंने डायरेक्ट उस वार में पार्टिसिपेट किया था और 1860 में वे साउथ इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी गैरीबाल्डी सफल रहा। तो इस तरह से इटली के यूनिफिकेशन में गैरीबाल्डी का रोल सबसे प्रभावशाली था। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो कैमूर, मैजनी और गैरीबाल्डी इन तीनों ने इटली के एकीकरण में अपनी अपनी जो है भूमिकाएं बनाई। मैजनी ने जहां यंग इटली नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम किया, वहीं कैमूर जो एक एलीट ग्रुप से आता था उसने भी जो है इटली के यूनिफिकेशन का जो है नेतृत्व किया और एलीट ग्रुप और एजुकेटेड लोगों को उसने अपने कूटनीतिक चाल से अपनी तरफ मिलाने की कोशिश किया। इस तरह से इटली का और जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में पूरा हुआ और इटली का यूनिफिकेशन 1861 में जाकर पूरा हुआ। इस तरह से इन 2 देशों का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। थैंक यू।